please let me. Is everything clear? अरे भाई इतना तो बता दो so that I can move ahead. Okay. Voice, camera is all okay to you all? ठीक है, okay, fine. Now let's get on very quickly with this. So first, I'll just give you a brief the important things about CUET so that while filling form, it will help you. Second, I'll go through how to fill the form, but I'll not go through the basic things where you will not get stuck. I'll only take up the important part which you should take care while filling the form, right? So now, first of all, let us understand the very basics of filling up the CUET form, the common university entrance test. So let's get on and understand about the very basic, right? Now, if you see, this exam obviously is conducted by NTA, the National Testing Agency. उसका role है exam conduct करके सब कुछ करने का, right? So that is the role of NTA. NTA is the conducting body. Now CUET is obviously for class 12 students, those who are applying or those who are passed out, and it is compulsory for central universities. But now if you will go and see the list, most of the state universities and deemed universities have also become part of it. So up 90% of the universities in India are part of this. But yes, there are universities like Christ which conduct their own entrance test. They are not part of this. So the list is there. So you don't have to remember anything. Just check the list at the university, which I'll show, and obviously जिन्होंने भरा होगा उन्हें पता होगा. Next, eligibility. So you don't have as such a prescribed eligibility as such. Every university has a different, but you get certain percentage in board. The marks of board will not be counted. It is just some may have a 50% in board, किसी का 60% लाना होगा board में, and so on. So the board का जो percentage है, that is just a qualifying. It will not get added to anything in the marks. The entrance test का marks will be added, right? So entrance test के जो marks होंगे, those will be added. And for this year, they have come up with a change. They will be taking the raw scores. अब तुम्हारे लिए तो इसीलिए मैटर नहीं करता क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो. तो रॉ स्कोर्स क्या पहले वो परसेंटाइल में करते थे. नाउ दिस टाइम वी विल हैव अ हाइब्रिड एग्जाम जहां ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है. पर ये आपको तभी पता चलेगा वंस यू फिल द फॉर्म और उनके पास जब एप्लीकेशन जाएगी तब पता चलेगा. बट वैसे बता दूं अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इन सब के ऑफलाइन पेपर होंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा बच्चे 1.5 लाख तक जो बच्चे ऑप्ट करते हैं वो ऑफलाइन होंगे. तो इस बार मल्टीपल डेज पे हर एग्जाम नहीं चलेगा, राइट? चलो बाद की बात है. नाउ देयर विल बी 3 सेक्शंस फ्रॉम व्हिच यू हैव टू चूज. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. नाउ सेक्शन 1 अगर आप देखेंगे it is based on languages. There are 2 sets of languages and till last year it was written compulsory कि language compulsory होना चाहिए. But now what you have to do is this, you have to go and check the condition, the university for which you are applying. जिस university के लिए आप apply कर रहे हो वहां जाके देखो उन्होंने compulsory लिखा है या नहीं, जो हम एक दो चेक करेंगे. And then you will have to choose. और उसमें भी एक दो गलती होती है क्योंकि लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने किया था एंड वहां पे वो फंस गए थे. तो प्लीज लिसन टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिकॉज फॉर्म भरते हुए कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा. सो सेक्शन 1 इज लैंग्वेजेस. एक 1A है, एक 1B है. और ज्यादातर में ये कंडीशन होती है यू चूज एटलीस्ट 1 लैंग्वेज. ज्यादातर बच्चे जो इंग्लिश मीडियम है दे चूज इंग्लिश, अदरवाइज यू कैन चूज मल्टीपल लैंग्वेजेस. बट एक चीज पक्का है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है आप वही चूज कर सकते हैं वहां पे और वही चूज करना. अब सब्जेक्ट चूज करते हुए ये नहीं हो कि इकोनॉमिक्स तुमने पढ़ा नहीं और तुम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर डोमेन ले लो. सो बी क्लियर अबाउट दैट. यू चूज ओनली द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड. यू कैन नॉट चूज जो आपने पढ़ा नहीं है. नेक्स्ट सेक्शन 2 है डोमेन, द मेन सब्जेक्ट. अब इसमें भी 2 लिस्ट है सेक्शन 2 में. एक है मेन सब्जेक्ट्स 18 और एक 9 जो एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं. अब तुमको एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर फाइन आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन दे आर आल्सो अलाउड. बट गो एंड सी द यूनिवर्सिटी कंडीशन. कई जगह
दे डोंट हैव अ रिस्ट्रिक्शन, आप एक से ज्यादा चूज कर लो, बट मेनी कॉलेजेस विल हैव रिस्ट्रिक्शन कि जब आप डोमेन चूज करो, 2 सेक्शन अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा करिकुलर है उसमें एक ही अलाउ है, तो मेनली मेन सब्जेक्ट से 2, so we'll discuss on that, and section 3 में एक ही है जनरल टेस्ट। now जनरल टेस्ट क्या है, 1 घंटे का टेस्ट होगा जिसके बारे में we will discuss, so these are the 3 sections from where you have to choose, and from this year only you can choose maximum 6, you cannot choose more than that including the general test, so this is what the combination is, and minimum अगर मैं बोलूं तो by and large 3 है, कुछ जगह चेंजेस हुए हैं, सो मिनिमम शायद 3 में हो जाएगा, कुछ ने लैंग्वेजेस हटाए, सो 3 and 6 दैट इज व्हाट विल गो। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये आपका सेक्शन 2 डोमेन का लिस्ट B1 है, और ये जो 9 सब्जेक्ट हैं ये B2 है, तो B1 is the main subject and this is the additional subject जो आपके पास होता है, but again you can only choose this if you have studied, नहीं तो वो मैपिंग नहीं होगी बाद में, खास करके डीयू में प्रॉब्लम हो तो मैप करते हैं सब्जेक्ट, तो आपके मैपिंग के टाइम अगर सब्जेक्ट ही नहीं है देन इट विल बी ए प्रॉब्लम, तो आई होप, और अगर किसी को कोई क्वेरी ऐसा होती है अभी मेरी किसी बात से, यू कैन नोट इट डाउन, सो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें हमें डिस्कस करेंगे। Now let's have the combination. So this is what the brief में मैंने बता दिया, ये आपका है। So languages में 1A लिस्ट है और 1B है, जहां लिस्ट में दिया हुआ है। डोमेन B1 में 18 और B2 में 19, अगर वहां B1 B2 नहीं भी बना तो 27 सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। जनरल टेस्ट यू हैव एप्टीट्यूड इसमें, और ये जो टेस्ट है इसमें जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल, अरिथमेटिक ये आता है। अब मैथ्स जो खाली जनरल टेस्ट में आती है इट इज अप टू क्लास 10 और 8 कह लो, अरिथमेटिक बेसिक मैथ, सो यू डोंट हैव टू गेट वरीड कि जनरल टेस्ट में हमारे पास मैथ्स नहीं था, खाली आपको डीयू में या कुछ जगह प्रॉब्लम आएगी जहां जनरल टेस्ट में 12th मैथ्स आएगी, वो भी मैं दिखा दूंगा। अदरवाइज इसमें जो है दैट इज अ प्योर अरिथमेटिक एंड दैट टू अ वेरी सिंपल वन, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग वेरी डिफिकल्ट, और डोमेन सब्जेक्ट जो भी टेस्टेड होगा दे विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स बाय एंड लार्ज फ्रॉम द सिलेबस, एंड एनसीईआरटी बुक्स आर द प्रेफर्ड वंस, राइट, तो एनसीईआरटी बुक्स को आपको बहुत थरोली करके जाना है, थरोली मींस वेरी डीप इनसाइट। जनरल अवेयरनेस विल बी वन इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर करंट अफेयर वुड बी एज, तो पिछले 1 साल का तो आपको करंट अफेयर आना चाहिए, एंड रीजनिंग का पेपर होता है जहां पजल्स और ये सब आते हैं, दिस इज द टेस्टिंग पैटर्न जो आपके पेपर में आएगा, राइट, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अप टू 8, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज मैथमेटिक्स। नाउ this is what the new change has, now options and duration, one option is आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, 6 चूज करना है, आपने एक लैंग्वेज ले लिया, 4 डोमेन लिए एंड एक पेपर, 6, जनरल टेस्ट को मिला के 7 नहीं कर सकते, 6, अब 4 डोमेन में क्या ऑप्शन हो सकता है, नाउ व्हाट कैन बी द ऑप्शन इन 4 डोमेन, आप जो B1 वाली लिस्ट थी 18 सब्जेक्ट, वहां से 3 ले लें, यहां से 1 ले लें, दिस इज वन, कुछ कॉलेजेस अगर अलाउ करें तो आप 2 और 2 भी ले सकते हो, so you'll have to read what colleges say, that is what the option is. Second option can be you can choose 2 languages and 3 domain and 1, तो again 6 का कॉम्बो बन गया, so anyhow maximum 6, it's not necessary कि तुम्हें 6 चूज करना ही है, राइट, और सपोज तुम 6 चूज कर भी लेते हो और अपीयर नहीं हो पाते तो टेंशन मत लो, अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है, अपीयर हुए या नहीं भी हुए, तो तुम्हारे मार्क्स तो एक्चुअली 4 के बेसिस पे ही कॉलेजेस लेते हैं, सो इवन यू अपीयर फॉर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल टेक बेस्ट 4, सो यू डोंट हैव टू वरी कि मैंने 6 भरा था, कई बच्चे मैथमेटिक्स भरते हैं 12th का, बट मैथमेटिक्स का थोड़ा पेपर लंबा आता है और उस टाइम पीरियड में नहीं हो पाता, सो व्हाट हैपेंस इज you have to actually see कि हम मैथ्स ले या नहीं ले, तो लो, पर वो मार्क्स काउंट के लिए आपको ये टेंशन नहीं लेनी जो बेस्ट 4 होगा। अब एनसीईआरटी जो किताबें हैं वो इस साल चेंज हुई थी, पर यू डोंट गो बाय दैट ओनली, यू हैव टू गो क्लिक ऑन द सिलेबस, वहां पे सिलेबस मेंशन्ड है, तो सिलेबस में आपको देखना है कि क्या-क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगर मान लो कोई टॉपिक एनसीईआरटी में इस साल डिलीटेड था और वहां लिखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी जहां उन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है
and from there you will have to see कि क्या आ रहा है क्या नहीं. By and large 90% जो NCERT है वही है. कुछ टॉपिक्स किसी सब्जेक्ट में इट कैन बी पॉसिबल वो इधर या उधर कुछ. राइट नाउ दिस इज देयर. नाउ ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन. जो 1A 1B है जो लैंग्वेजेस है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मिनट्स में और टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स. तो जो लैंग्वेजेस का पेपर होता है वो आपका 45 मिनट्स का है और 40 क्वेश्चन आंसर करने आउट ऑफ 50 एंड फॉर ईच करेक्ट यू विल गेट 5 मार्क्स. तो ये 200 मार्क्स का. Where you get a choice of 10 questions. 40/50 का मतलब है out of 50 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने and 45 minutes will be the time duration. Now come to domain. Most of the domain questions जो है वो जो होंगे 40 जैसे मैंने बोला out of 50 या 35 out of 45. जैसे मैथमेटिक्स है so they have made 35 questions out of 45 और उसके लिए टाइम पीरियड भी 60 मिनट्स कर दिया है. तो अब आपको मैं समझाऊं. देयर आर 2 कैटेगरीज डोमेन में. एक 40 क्वेश्चंस जैसे यहां आउट ऑफ 50 और 45 मिनट्स अगेन +5 -1. देन यू हैव द सेकंड कैटेगरी यहां पे 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 35 आउट ऑफ 45 बट यू गेट 60 मिनट्स आउट हियर. कोई +5 -1. तो मैथ्स में क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है इसकी वजह से पहले ऐसा नहीं होता था. इसकी वजह से अब इन्होंने ये टाइम कर दिया है. तो मार्क्स का जो मेरिट बनेगा वो भी प्रो राटा होगा. व्हाई प्रो राटा? बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट ऑफ सेम मार्क्स. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 175 का ही पेपर बनेगा, यहाँ पे 200 का बनेगा. तो कुछ जगह वो प्रो राटा मिलेंगे. आर यू गेटिंग इट? मतलब हो सकता है किसी बच्चे ने मैथ्स लिया ही ना हो तो उसको तो 4 सब्जेक्ट अगर वो यहाँ से लेके मेरिट है तो 800 में से बनेगा और यहाँ पर उसका कम होगा. तो मान लो 175 में से किसी ने 170 लिया तो दे विल गो टू यूनिटरी मेथड कि अगर 200 का होता तो वो कितना लेता एंड देन दे विल ब्रिंग योर राइट. एंड जो डोमेन पेपर होता है जनरल टेस्ट होता है दैट इज 1 hour +5 -50 आउट ऑफ 60. ठीक है. 50 out of 60 is basically they are going to ask. So that is how the thing is there. और बाकी अगर इसमें कोई changes या कुछ होते हैं तो वेबसाइट पे but as far as there ये जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन 60 पे होते हैं और +5 -1 hour का ये पेपर है जनरल टेस्ट. तो जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स कुछ और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उन्होंने 1 hour. राइट. सो आई होप टिल हियर क्लियर. यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेसिक. किसी को कोई यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो सो दैट आई कैन क्लियर अभी यहाँ तक. एनी डाउट टिल हियर? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? चलो आगे. किसी को कोई डाउट है? क्लियर? किसी को कोई टाइप करना है कुछ करना है बता दो. ठीक है. निधि ने कहा नथिंग और चलो लेट्स गो अहेड. फाइन. चलिए अब हम लोग आगे करते हैं. क्या बोलो. Yes, sir. I had a doubt. Yeah, bolo. Sir, about course selection from the list B2. Okay, my main subjects, I know I have to choose them from list B1, PCB, physics, chemistry, bio, that is fine. From list B2, my additional subject in class 12th is psychology, but it is not included in B2. So what should I do in that case? See, it depends the university you are applying. जो लोग साइंस को अप्लाई कर रहे हैं it's only PCB or PCM they are asking. They are not asking anything else. And for them, जैसे आप DU में अप्लाई करते हो तो इंग्लिश में you just have to qualify. The marks also will not be counted. But yes, if you have to change the stream, like अब आपने क्या किया कि साइंस भी भरा और आपने इकोनॉमिक्स भर दिया फॉर एग्जाम्पल या साइकोलॉजी भर दिया फॉर एग्जाम्पल. That case, your English marks will be counted, your PCM will be counted. Now, अब आप कह रहे हो साइकोलॉजी दिया हुआ नहीं है B1 में. Let me see क्या दिया हुआ है क्या नहीं है. Let me have a look. So ये देखो साइकोलॉजी B1 में दिया तो है. There is psychology out here. Okay. और अगर इधर होगा that doesn't make B2. All of my main subjects then are included in B1. I'm not supposed to choose anything from B2. That is fine. Yes, see. What difference they have made? आप थोड़ा समझो B1 and B2. B1 से can select everything. They will not object.
they will object some universities when you try selecting most of them from here. Like suppose you are doing a DU में BCom honors course. Now what happened? स्टूडेंट ने क्या किया, 6 सब्जेक्ट है उसके पास, तो इंग्लिश ले लिया और उसने 2 सब्जेक्ट वहां लेके बाकी वो चाह रहे हैं कि मैं 3 सब्जेक्ट यहाँ से ले लूं, मेरे पास म्यूजिक भी था और मेरे पास फिजिकल एजुकेशन भी था. So in that case, those universities put a restriction that from here you can choose one only and then remaining you have to choose from here. So that अच्छा. is B1 से तो कोई restriction ही नहीं है. B1 में तो you choose all, they will allow. The only restriction is this list. Okay? Okay, so there is no such compulsion that you have to go from B2 also. No, B2 ही restricted है. You cannot go everything from B2. B1 हाँ. you take all 4 also or 5 also if you have. Okay, so even if I'm not choosing anything from B2, it is fine. Fine. B2 is a very light subject because everyone scores more. But then they have given an option. ज्यादातर ने 1 choose करने को दिया, maximum 2. Right? Okay, got it, sir. Thank you. Let's go ahead. अब हम इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं. ये सब हमने बातें कर ही ली और क्या रहता है. Now see, I'm just telling you in simple detail. Say BCom pass course है, तो generally for the pass course they have said 1 language and 3 domain level. Or 1 language, 1 domain, and if you take a general test, तो फिर उतने में काम हो जाएगा. तो जैसे कोई पास कोर्स कर रहा है, तो आप एक लैंग्वेज चूज कर लो, 3 डोमेन कर लो, बात बन जाएगी. एक लैंग्वेज, एक डोमेन लिया, तो 2 डोमेन के बराबर वो जनरल टेस्ट को मान रहे हैं. So in that case, that is fine. But if you are taking a honors course, generally general test वो नहीं लेते. So for example, DU का BCom honors है, you take 1 language, mathematics oblique accountancy. So mathematics is not a compulsory thing. आप accountancy ले लीजिए, maths ले लीजिए, and take 2 domain. अब मान लो आपने maths लिया या accounts लिया, एक डोमेन तो B1 में से आ गया. अब वो ये कह सकते हैं एक B1 से और चूज कर लो और एक B2 से कर लो. So that is how thing may be there. But if you're doing a BA pass, BA economics, so again 1 language. So pass में 1 language, 3 domain, 1 language, 1 domain GT. For honors में it is 1 language and this. But if you do say eco honors from DU, I'm talking now DU, then maths is compulsory. Whereas BCom honors में maths is not compulsory. And जिसके पास applied maths थी, they can take applied maths. जिसके पास core maths थी, they can take core maths. इन्होंने खाली maths बोला है, applied और core में कोई distinction they have not. Now this is a very good course also. Now I don't know how many of you are aware, BMS, BFI and BB. This is University of Delhi का बहुत अच्छा course है and it is given separately. I'll show you. Here the combinations are specified. मतलब तुम कुछ ही नहीं कर सकते. इसमें simple बोला है, एक language लेना ही है. Maths 12th level. This is the place where maths will be 12 और general test में जो maths आएगी इसमें वो 8th level तक आएगी. But if you are applying for any of these 3 courses, BMS is Bachelor of Management Studies, BFI is Bachelor of Financial Investment and Analysis, and BB is Bachelor of Business Economics, and they are very good courses from Delhi University, professional courses. So if you are applying, then you have to take 1 language, 12th ka maths is compulsory, and a GP test, general test. That is it. You cannot do any freaking or choosing from here and there. वो specific कर दिया. And you are doing say BA honors journalism का entrance test. These are all entrance exam. English oblique Hindi जो था plus 3 domain और English oblique Hindi plus 1 domain plus GP. Right? So while filling up, you don't need to remember. इसको याद करने की जरूरत नहीं है. जब आप फॉर्म भरेंगे, क्लिक करेंगे तो वहां लिखा हुआ है. I just explained you in brief, right? Slots अब ये आने चाहिए. Generally the slots used to be 45 minutes, 60 minutes, 195 minutes. मतलब कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट अगर भरते हैं, you cannot expect them to take 6 subject examination in 1 slot. मेरी बात समझ में आई? कि अगर मैंने 6 सब्जेक्ट भरे और एक सब्जेक्ट मिनिमम 45 मिनट्स का तो है ही है. You got it ना? So 640, 240, 270 minutes. अगर 270 मिनट तुम एग्जामिनेशन देने के लिए बैठोगे तो 4 घंटा 30 मिनट हो जाएगा. सो जाओगे, खत्म हो जाएगा. तुम्हारा भी बचेगा ही नहीं. और जानना मई में एग्जाम देना है और वो भी चेंज होगा. ये 15 मई की डेट भी चेंज हो सकती है. आपको बता दूं क्यों चेंज हो सकती है. लोकसभा इलेक्शंस. So there is a likelihood once the Lok Sabha date comes, this 15th से 31st का date also may some changes. Now
द स्लॉट लाइक दिस। तो आपका मन करता है मैं एक दिन में एक लैंग्वेज दे दूं या ऐसे कर लूं। सो स्लॉटिंग में दे माइट पुट यू डिपेंडिंग ऑन द चॉइसेस यू हैव। आपको अगर 4 ही दिया है तो वो एक स्लॉट दे देंगे कि भाई एक लैंग्वेज दो, डोमेन एक जनरल लो और चलो। पर जिन्होंने 4 से ज्यादा या ये भरा है जनरली दे मे गो फॉर ये देखो 225 मिनट स्लॉट, 45 टू 225। नाउ 45 क्यों दिया, एक ही पेपर होगा तो 45 में देके चला गया, 5 पेपर है तो 225। तो स्लॉटिंग वी कैन नॉट चूज, दे विल गिव यू द स्लॉटिंग एज पर द सब्जेक्ट्स यू फिल। सो जनरली हु फिल्स मोर देन 3 और समझ लो मैथ्स भी है जीटी भी है, they might do this thing, so it's done by them. But if you have filled 6 you will not get 1 slot, you will get 2 slots. होता क्या है कई बार एक ही दिन में दोनों स्लॉट आ जाते हैं, तो सुबह एक दे दिया इवनिंग में एक दे दिया, ऐसा भी करते हैं, डिपेंड होता है वो क्या है, बट जनरली नहीं होता, एक स्लॉट एक दिन में अगले दिन दे देते हैं। सो दैट इज व्हाट, सो दिस आर द स्लॉट्स देयर आर। अब इस बार अगर कुछ चेंज होगा बिकॉज दिस टाइम बिकॉज दे हैव ऑफलाइन एग्जाम यू माइट सी सम चेंजेस आल्सो, क्योंकि लास्ट ईयर तो ऑनलाइन के चक्कर में मल्टीपल स्लॉट्स गए, इस बार उतने स्लॉट्स नहीं होंगे तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी, यू विल गेट सम ब्रीदर दिस टाइम। ये कोई काम का नहीं है बिकॉज ये अभी हम लोग वहां देख लेंगे। जैसे ये है कि अगर किसी ने जस्ट से बीएससी फिजिक्स करना है तो आपको खाली पीसीएम देना है, और नल का मतलब जनरल टेस्ट नहीं देना, और दूसरा लिस्ट ए में लैंग्वेज लोगे उसमें 30% लाना है। तो अगर आपको साइंस में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश को क्लियर ही करना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई साइंस स्टूडेंट स्ट्रीम शिफ्ट करना चाहता है तो दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं देने अपने ही हैं, पीसीएम और इंग्लिश। लेकिन जब आप स्ट्रीम शिफ्ट करोगे तो जो आपका स्कोर है उसमें इंग्लिश काउंट करके तब आपकी मेरिट लिस्ट देखी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि इफ यू वांट टू चेंज द स्ट्रीम, तो एक साइंस स्टूडेंट आर्ट्स में जाना चाहता है देन उसको पीसीएम प्लस इंग्लिश का टोटल, तो मान लो किसी के पीसीएम में 600 में से 550 आए और इंग्लिश में 200 उसमें 150 आए, तो उसका टोटल 700। वो 700 कंसीडर होगा फॉर एडमिशन इन कोर्सेज अदर देन साइंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर तुम साइंस में एडमिशन ले रहे हो तो खाली तुम्हारे पीसीएम का कोर्स होगा, इंग्लिश के मार्क्स साइंस स्टूडेंट्स के नहीं देखे जाएंगे, whereas for commerce others इंग्लिश या लैंग्वेज के मार्क्स देखे जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ना सबको ये वाली बात? तो ये सब दिया होगा, एंड एज पर एज योर सेक्शन जनरल टेस्ट है यू विल हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, और पैसेजेस ही पैसेजेस आते हैं और वोकैबुलरी ज्यादातर। सो यू नीड टू हैव बी ए वोरेशियस रीडर, जितना रीडिंग कर सकते हो वो करना। फिर थोड़ा सा ये सब कम आते हैं, ग्रामर वगैरह वोकैब, और ये मेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज व्हाट इट इज, इट्स अ बेसिक। 12th में तो आई थिंक ग्रामर होता भी नहीं। और ये है रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स जो आएंगे, वो सिलेबस में लिखा होगा, जनरल अवेयरनेस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे जो सिंपल मैथ्स के प्रॉब्लम है ये जनरल टेस्ट है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ सेक्शन 3। डोमेन तो आपको पता ही, एनसीईआरटी पढ़ चुके हो बुक्स, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, ये सारे हैं। पहले ऐसा कुछ मार्कशीट आता था, पर अब मार्कशीट में अभी नहीं जाऊंगा, तो रिजल्ट आ जाने दो, देन वी विल डिस्कस। अब ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, पहले क्या होता था बहुत स्लॉटों में पेपर होता था, उस मार्क को नॉर्मलाइज करते थे। नॉर्मलाइज का मतलब मैंने आज पेपर दिया, किसी ने 10 दिन पेपर पहले दिया, हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग है, तो उस स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करके फिर आगे बढ़ते थे। पर इस बार क्राइटेरिया डिफरेंट है, सो वी टॉक अबाउट इट वंस रिजल्ट्स आर देयर। एंड इसमें हम लोगों ने भी बहुत हल्ला किया था कि भाई मैथ्स जैसे में आप 40 क्वेश्चन में 45 क्यों देते हो, हाउ विल अ स्टूडेंट डू? अगर वो पोल साइंस का पेपर दे रहा है तो 40 क्वेश्चंस कर लेगा, मैथ्स के थोड़ी कर पाएगा, एंड हेंस ग्रेजुअली हमारे साथ औरों ने भी हल्ला किया ये पॉइंट पे। सो आई होप इतना क्लियर है, एंड दिस इज देयर। चलो ये वाला तो हमारा काम हो गया। अब मैं आपको फॉर्म पे, नाउ टेल मी आउट हियर, सो मेनी ऑफ यू आर हियर, ऐसा कोई बच्चा है जिसने फॉर्म भरना ही शुरू नहीं किया? जस्ट रेज द हैंड, सो आई हैव आई मीन इट विल बी इजी फॉर मी टू डू इट। इज देयर एनी स्टूडेंट? अच्छा एक है, और कोई? 2 3 और भी? अच्छा आप लोग, तो मैं बेसिक से ही बता देता हूँ ताकि बहुत गो थ्रू करूंगा ये। अब आप देखो, आपको साइट धीरे धीरे खुलेगी कि बेसिक कहाँ से शुरू करना है,
CUET का फॉर्म, ठीक है ना। ये कॉमन यूनिवर्सिटी आप देख रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, एक मिनट रुको मैं शेयर करता हूँ अभी, एक मिनट आपसे स्क्रीन शेयर होगी। आपको स्क्रीन दिख रही होगी है ना बच्चों, एवरीबॉडी कैन यू सी द स्क्रीन देयर? हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, नाउ सी, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, देखो क्लिक किया गया। अब यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड अगर ब्रोशर करना है जो आपको कर ही लेना चाहिए, एंड दिस, और बाकी सबसे पहला स्टेप ये है क्लिक हियर टू प्रोसीड। हम लोग क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेते हैं। अब आपको आइडेंटिटी कार्ड डालना है। आधार कार्ड तो सबके पास होगा, ठीक है ना। ये देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, आई हैव आधार नंबर, आई हैव डिजी लॉकर अकाउंट, फिर वो वहां से जाके ले लेगा। तो मान लो आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड डाल दें, ठीक है ना। यहां आपको आधार जैसे डालोगे ओटीपी आ जाएगा, तभी आपको आगे फॉर्म भरने देगा। एक बार देखो कोई होता है हमारे पास आधार, उसका तो नहीं आएगा अभी, एक बार डाल के देखो, देखो मेरा 7758 और क्या था 38093913, देखते हैं क्या बोलते हैं। सो ये देखिए, जैसे इसने बोला ओटीपी जनरेट किया गया है, एंड सो यू विल हैव टू फिल अप द ओटीपी, ठीक है ना। वंस द ओटीपी कम्स तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है। आई होप आपको क्लियर है। And so once I fill up this OTP, then what is going to happen is ये सारा ये आपसे भरेगा, एंड देन इट विल ओनली मूव फॉरवर्ड व्हेन यू आर वेरीफाइड। आपको ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले ओटीपी आते ही वो आपको कहेगा फिल अप द डिटेल्स। नाउ इट विल आस्क फॉर योर, सी ओटीपी से वन थिंग विल हैपन, इट विल पिक अप योर नेम। आधार कार्ड से आपको नाम नहीं भरना, जो आधार कार्ड में नाम दिया है वो नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो पिकअप कर लेता है, डोंट हैव टू डू दैट मच, ठीक है। एंड then once you have this, then it will ask for ये basic चीजें, and then permanent address। अगर तुम्हारा permanent और communication address different है, then you will have to fill up, otherwise ये same, ठीक है ना। present address ये होता है कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, out of city रहते हैं, that is why this thing is there। and once you do, suppose I agree, then it goes to save and next। नाउ कम्स दिस। अब ये ABCD आईडी, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। अगर तुम्हारा डिजी लॉकर आईडी है कोई, देन ओनली यू हैव टू फिल दिस, नहीं इसको फिल मत करना, ये कंपलसरी नहीं है। तो आपने आधार कार्ड दे दिया, अब ये ABCD आईडी आपको नहीं फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, ये सब करना है। आइडेंटिटी टाइप, अब आइडेंटिटी टाइप में एक तो आधार कार्ड ले लिया, नाउ एनी अदर, सो यू कैन इशू क्लास 12 एडमिट कार्ड। तो आप यहाँ पे क्लास 12 एडमिट कार्ड डाल दीजिए। तो वंस यू फिल क्लास 12 एडमिट कार्ड, देन इट विल आस्क यू स्टेट डोमिसाइल, जहां से आप पेपर वगैरह दे रहे हैं तो वो फिल कर दीजिए। दिल्ली है तो दिल्ली, असम है तो असम, ठीक है ना। तो स्टेट डोमिसाइल फिल हो जाएगा। फिर फादर है, मदर है, मैट्रिकुलेट है, कुछ भी आर्बिट्री भर दीजिए, इनकम भर दीजिए, एंड दिस आर ऑल रिलेटिव। नाउ वंस यू फिल अप दिस, यू विल हैव टू गिव द नंबर हियर। तो आपको बोर्ड का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, बिकॉज आपका पैन कार्ड या कुछ नहीं है। सो यू फिल अप द बोर्ड रोल नंबर, एंड देन PWDs जो फिजिकली डिसेबल्ड है, एंड देन फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का, और अगर तुम ट्विंस हो तो वो भी बताना पड़ेगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मीडियम ऑफ स्टडी एंड दिस, ठीक है ना। तो ये जब आप कर लोगे देन ओनली आपको ये आगे बढ़ने देगा, ठीक है ना। नाउ सिंस मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं तो जस्ट
So then if I agree, it will go there. Now contact details, personal details हो गया ना हमारा application. Now other category. Now कोटा का कैटेगरी पे अगर हम जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब में ज्यादातर नो ही आएगा. कोई अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है और फादर वहां पे जॉब करते हैं तो यस करना. यूनिवर्सिटी मींस इफ एनीवन parents are working in a particular university in which you are applying, otherwise. So there you say I agree and then save and next, right? And then it will again ask me qualification detail. तो आपको यहाँ पे 10th कहाँ से पास हुआ था ये फिल करना है. So 10th qualification, what type of school it was, private or aided, ये सारे ऑप्शन आएंगे. ठीक है ना, you can see the options out here. ठीक है, right? You can do it. Your board, pin code, percentage mode, ये arbitrarily आप कुछ भी अपना, ये सारे details है. So this I am not going to 10th or 12th. Now 12th में what you all will fill is appearing. आप लोग appearing fill करोगे. Are you getting it? आपको appearing fill करना है तो वो marks वगैरह के लिए नहीं पूछेगा, बाकी सब ठीक है. So that is what it is. आपका result mode and then you agree. दिखा दो, अपीयर कर दो, यहाँ आ जाएंगे. Now 12th में देखो, अगर because मैंने तो पास भरा है appearing, year of appearing 2024 बस. So it's not going to ask you for this. तो वो आपका पिन कोड लेगा और रोल नंबर लेगा और एग्री कर देगा. ठीक है ना, then you can go ahead. Right after qualification, सब स्टेप बाय यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. अब ये समझ लो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. Now first of all be clear, you can choose as many universities you want. There is no restriction on choosing universities, there is restriction on choosing number of subjects. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये जो फॉर्म का आएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो लिखा है, अब यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट करने जाते हैं ना, यू सी बहुत सारा असम यूनिवर्सिटी आ गया. सपोज असम यूनिवर्सिटी में जाता, अब असम यूनिवर्सिटी में मुझे कौन सा कोर्स चूज करना है वो आएगा. सो सपोज आई चूज दिस, यहाँ एक बटन है ऐड कर दो. तो नेक्स्ट आपको फिर और कुछ करना है, यू हैव टू कीप एडिंग द कोर्सेज. तो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ले लिया है ना, यहाँ पे हम यू टाइप कर लेते हैं. नहीं, तो यू कैन गो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. नहीं, यहाँ टाइप का होगा ऑप्शन. यू जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ले. नाउ यू सिलेक्ट द प्रोग्राम. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप 5 बार ऐड करो, 6 बार, चेंज द प्रोग्राम. तो सपोज करो मैं क्या प्रोग्राम ले लूं, कोई भी आर्बिट्रली हम प्रोग्राम ले सकते हैं. साइकोलॉजी या कुछ था यहाँ पे अभी. चलो मैंने ये ऑनर्स लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, इंफॉर्मेशन, कुछ भी. यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं मिल रहा मुझे, मिलता तो चलो कोई नहीं, मैं बायोकेमिस्ट्री चूज कर लेता हूँ. सो दैट इज. सो अब मैंने क्या क्या चूज कर लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स लिया. अब देखो यहाँ पे अपीयर हो गया. कैन यू सी? Now see, can you see BCom honors? Any one from section 1. अब देखो अगर BCom honors करना है, any one from section 1, mathematics oblique this, accountancy oblique plus any two from section 2. Any two from section 2. तो section 2 से इन्होंने any two बोल दिया. Provided वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए. ये मत सोचना कि बिगर हुए ले लेंगे. And then suppose eligibility click करना है, तो मैं यहां पे चला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. अब इन्होंने सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी दे रखी है. नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग कोई साइंस का कोर्स ले लेते हैं, किसी ने बीएससी बॉटनी करना है, तो यहाँ पे यस आई विल जस्ट शो यू हाउ साइंसेस को इन्होंने किया हुआ है. जस्ट एलिजिबिलिटी दिखा रहा हूं.
कैंडिडेट मस्ट अपीयर सीयूईटी इन द फॉलोइंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह. मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दिस फ्रॉम द अबव कॉम्बिनेशन. देखो, कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 30% इन लैंग्वेज. तो डीयू में साफ साफ लिखा है अगर तुम साइंस कोर्स ले रहे हो देन यू जस्ट हैव टू अपीयर इन व्हाट 3 मेन सब्जेक्ट्स और कुछ वो देखेंगे ही. बट इफ यू आर नॉट अपीयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, जैसे किसी ने पूछा था साइकोलॉजी करना है, then अलग criteria. Are you getting it? So that is how it goes. अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं. अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बस थोड़ा सा ये क्या बोलता है, इंडियन फिलोसॉफी करना है किसी को तो रिक्वायर्ड इंग्लिश टेस्ट, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट एंड कैंडिडेट्स हु will not appear in both the section and this shall not be considered. तो उन्होंने बोला है भाई अगर फिलोसॉफी करना है तो जनरल टेस्ट देना जरूरी है and English test. So you have to read which course you are applying and for which you are doing. अब कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है तो सेक्शन 1 इंग्लिश 2, सेक्शन 2 में बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27. तो साफ साफ बोला है कि इंग्लिश लीजिए +3. तो जनरली बेस्ट ऑफ 4 चल रहे हैं. बट देखो यहाँ पे आके अगर यू सी द चेंज, दे आर आस्किंग ओनली इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट. तो कहीं पर भी आपको 3 सब्जेक्ट नहीं चूज करना, एक जनरल टेस्ट लिया, इंग्लिश लिया. सो देयर आर वेरिएशंस, ये आपको ध्यान से पढ़ना है. गेटिंग इट? तो आई होप यू आर क्लियर. यहाँ पे बीकॉम उसको करना थोड़ा मैं वो दिखा दूं. जैसे मैंने बोला बीकॉम पास anyone from section 1 मतलब लैंग्वेज, any 3 from section 2 जैसे 1+3 और anyone from section 1 plus anyone from section 2 plus section 3. जो मैंने बताया था, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ, क्या है? Engineering you will not get, that is JEE main. For engineering you will have to go to JEE main. CUET will not take care of engineering courses. ये graduation courses हैं, so they are not going to take care of that. Yes, they have added in DU some new course, B.Ed add हो गया. जो लोग teaching करना चाहते हैं they can generally take that, but here you will not find. अब जैसे Christ है, Christ यहाँ feature नहीं कर रहा, नार्सी मोंजी नहीं कर रहा, तो यू हैव टू अपीयर फॉर देयर सेपरेट टेस्ट. अब किसी को लॉ देना है, क्लैट तो चला गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज व्हिच मे गिव यू. अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूं. जनरली लॉ क्लैट से होता है, बट इस साल से कुछ डीयू जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, मैं वही एकदम देख लेता हूं, आपको दिखाता हूं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लॉ का कहीं होना चाहिए या इन्होंने अपना ही किया है. नहीं. So you'll have to check if any university, generally it's SLAT. अब SLAT या SET सिंबॉलिसिस करता है, तो ये लोग लॉ इन जनरल अपने यूनिवर्सिटी टेस्ट करते हैं. बट आईपी है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अंबेडकर यूनिवर्सिटी अगर कर रहा हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एक बार इसके प्रोग्राम देख लेते हैं. 4 year BA in liberal arts, BBA and allied economics, B pharma. So BA in liberal arts and this. ये देखो, here you have integrated LLB. तो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से you can do LLB. अब हमने इसको ऐड किया, इसका ये भी देख लेते हैं रफली. So you see, if you are taking from Guru Gobind Singh, section 1 है English, section 2 legal studies, quote this and this. अब यहाँ फर्स्ट कहाँ गए? अगर आपके पास लीगल स्टडीज नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते. अब इन्होंने बोला लीगल स्टडीज होना जरूरी है. अगर आपके स्कूल में लीगल स्टडी नहीं था तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं. एंड बाय एंड लार्ज बाकी जो एंट्रेंस होते हैं उसमें लीगल स्टडीज नहीं आता, उसमें लीगल सेक्शन आता है. दे विल नॉट आस्क, वो अपना एंट्रेंस करते हैं. दैट डजंट कम अंडर CUET. ठीक है. और देख लेते हैं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है क्या.
एक रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी दिखा देते हैं भाई, इनके क्या प्रोग्राम है, ये कहीं लॉ देते हैं। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जैसे जनरली बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी ऑनर्स है। अब हम ये रॉयल ग्लोबल को अगर ऐड करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ है, इन्होंने खाली बोला है लॉ, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, बहुत वेग लिखा है लॉ। अब यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे जनरल है तो यू हैव टू डू लिटिल रिसर्च बिफोर फिलिंग अप, ठीक है ना। यार लॉ लॉ लॉ, so they haven't given us such any eligibility law दिया है क्या इन्होंने, नहीं दिया। चलो that is there, you'll have to read it out. सब यूनिवर्सिटीज हैं, you cannot remember everything, you will have to go and research and write, so उसको ले आओ। so you'll have to see, वहां पे हम law लिखा है, तो as a law subject है, that is what they are asking again if you have studied law, ठीक है। तो ये सारा है, you can add any number of courses, ठीक है ना, यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, आप कर सकते हैं, ताकि जब आपका मार्क्स आए आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो इट्स बेटर यू चूज एज मेनी एज पॉसिबल। अब डीयू का तो क्या, यू कैन ओनली चूज यूनिवर्सिटीज, जब आपका मेरिट आएगा देन यू विल बी एबल टू चूज कॉलेजेस, तब आप अप्लाई, मेरिट क्या रिजल्ट आने के बाद फिर वो बोलते हैं कि हमारी कट ऑफ ये है, अब आप अप्लाई करो, वो बहुत टेक्निकल है, वो दूसरा होगा, देन आई डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट। अभी नाउ प्रोग्राम के बाद सिलेक्शन, नाउ सी दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स। अब यहां पे देखो टेस्ट पेपर 1 इंग्लिश, ये मीडियम भी याद रखना, इंग्लिश ही रखना, गलती से कुछ और मत छोड़ना, यू हैव टू फिल द मीडियम, क्योंकि जिसने इंग्लिश में पढ़ा है अगर वो हिंदी में या किसी और में बाकी सब्जेक्ट्स करेगा, तो हर पेपर का मीडियम उन्होंने पूछा है इन विच यू विल अपीयर। सो economics, now there is no difference between economics and business economics, it is one and the same, तो आपको घबराना नहीं है, वो एक ही है। अब तुम कहोगे सर मेरे लिए पेपर कैसे आएगा, कैसे उन्हें पता चलेगा कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उस पेपर में दोनों होंगे। तो when you are appearing इकोनॉमिक्स का पेपर, there will have two sections, इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो जो तुम्हारे पास है वो चूज करना। जनरली बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत कम स्कूल्स में पढ़ाया है। अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, बुक कीपिंग कुछ और जगह पढ़ाया जाता है, पर देयर आर सब्जेक्ट्स। तो अब अकाउंटेंसी जब मेन पेपर होगा, उस पेपर में ऑप्शन होगा, जैसे मैथ्स का पेपर एक ही आएगा, बट दे विल गिव यू द ऑप्शन कि उसमें आपको अपीयर किस में होना है। ये एक है, ये मैक्सिमम 6 है, आपको भरना है भरो नहीं, मैंने जनरल पढ़ा, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये, पर वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ये नहीं है कि बिगर हुए तुम्हें लगा कि मैं भर दूं और ये है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। और जनरल टेस्ट अगर तुम्हें लगता है अपीयर होना है तो अपीयर हो गया, नहीं तो नहीं, ठीक। देन एग्जाम सेंटर डिटेल्स, किसी ने पूछा डीयू के कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज लेने चाहिए। नाउ सी एज पर एज, और कोई क्वेरी है? ओके, सो व्हाट आई डू इज, तुम लोग थोड़े से क्वेश्चंस ना सेव भी कर लो, ये दो तो मैं आंसर कर देता हूं। नाउ सपोज यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट फ्रॉम डीयू, यू शुड बी डूइंग बीएमएस, अप्लाई करिए, बीएफआई अप्लाई करिए, बीबीए अप्लाई करिए, दोस थ्री आर गुड कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज भी हैं डीयू में, जो लोग वोकेशनल लेना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई दोस कोर्सेज। There are journalism college courses also, you can apply for that. अब जामिया का भी कोर्स होता है apart from DU, you can go for there. अब जैसे कमला नेहरू कॉलेज है तो वहां पे जर्नलिज्म का कोर्स है, एनडीटीवी में निताशा जोग और ये सब है, वो कमला नेहरू कॉलेज के पास है। जो लोग सीए कर रहे हैं उसके साथ बीकॉम ऑनर्स लेना, बीकॉम पास मत लेना। इफ यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स देन टेक बीकॉम पास, लेकिन अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो सीए कर रहे हो तो बीकॉम ऑनर्स करना है, सीएफए कर रहे हो तो भी बीकॉम ऑनर्स लेना है, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, ठीक है ना। सो इफ यू आर डूइंग ए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी लॉ पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो जो लोग कंपनी सेक्रेटरी करने का सोच रहे हैं पॉलिटिकल साइंस करिए, ठीक है ना। लॉ अगर आप करते हैं और कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन।
तो सीए के साथ आपको बीकॉम पास नहीं ऑनर्स करना, गलती से भी पास करते। ये नाउ वंस यू फिल दिस देन कम सब्जेक्ट्स के बाद चॉइस ऑफ सेंटर। अब जैसे जो दिल्ली भरेंगे, दिल्ली वालों सुन लो, जब तुम दिल्ली भरोगे ना तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो, जब आप दिल्ली भरोगे तो खाली 3 ही आ रहा है दिल्ली वालों के लिए, उत्तर प्रदेश हरियाणा, और बाकी नहीं आ रहा। सो व्हाट हैपेंस, जब दिल्ली भरोगे तो फर्स्ट चॉइस दिल्ली, सेकंड चॉइस दिल्ली नहीं देगा, फिर आपको हरियाणा लेना है या उत्तर प्रदेश। तो मैंने क्या किया, हरियाणा में फरीदाबाद भर दिया, उत्तर प्रदेश में नोएडा ग्रेटर नोएडा, हरियाणा में गुरुग्राम। तो दिल्ली वालों आप ऐसे ही भरना, दिल्ली हरियाणा 2 ले लेना और उत्तर प्रदेश 1, बिकॉज यहाँ तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, हमारे पास और कुछ नहीं है। कोई गाजियाबाद रहता हो आसपास तो अलग बात है। सो दिस इज व्हाट द चॉइस, प्रेफरेबली दे विल टेक द फर्स्ट 2 और उसके बाद थर्ड फोर्थ पे जाएंगे। समझ में आया? ये सेंटर ध्यान से चूज करना, ये नहीं हो कि कहीं इधर उधर पढ़ लो। सो यू हैव टू सी। अब जैसे रुको, ये आएगा अकॉर्डिंग, अगर मैं सपोज असम से भर रहा होता तो असम के मेरे पास सेंटर्स आते कि असम में कौन कौन से हम सेंटर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है भाई, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब जब अपलोड डॉक्यूमेंट है तो मिनिमम साइज जो आपका होना चाहिए जेपीजी या जेपेग फाइल का 10 केबी और मैक्सिमम 200। ठीक है, किसी को अगर इसको बनाने में दिक्कत हो तो हमें बता दो, विल टेल यू हाउ टू मेक इट। और उसके बाद उस फाइल को चूज करके अपलोड करना है, और फोटो जो अपलोड करो वही फोटो आपको होना चाहिए, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड टू टेक दैट फोटोग्राफ फर्दर एडमिट कार्ड के साथ। तो आप यहाँ कुछ और फोटो डालो और बाद में कुछ और लेके जाओ, रिजेक्ट कर देते हैं, तो मेक श्योर यू डू दैट। फिर इसमें मिनिमम साइज 4 केबी है, और ये, और आप अपना यहाँ सिग्नेचर भर दो। ठीक है ना, जनरली विच यू हैव डन इन योर आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड या आधार कार्ड में जैसे आपके साइन है वही साइन करिए और इसको अपलोड कर दीजिए। पेंट में जाके ये बहुत इजीली बन जाता है, आप अपना कोई भी साइन पेपर पे करिए और पेंट ब्रश में जाके उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो फाइल बहुत इजीली हो जाती है। और फिर भी किसी को दिक्कत हो तो यू हैव आवर नंबर्स, विल हेल्प यू इवन इन फिलिंग द फॉर्म। और अगर किसी भी स्टेज पे होता है तो बेझिझक पूछ लेना, बट डोंट फिल द रॉन्ग फॉर्म, अभी बहुत टाइम है सबमिट करने के लिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाता है फिर वो करेक्शन विंडो में जाना पड़ता है। तो ये किसी को प्रॉब्लम है फोटो और सिग्नेचर में, फोटो और सिग्नेचर सब बना लेते हो या दिखाना है? आप बना लोगे ना केबी इतना साइज और जेपेग फाइल? अरे नहीं बना पाते तो बताओ, इफ एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम। अभी एक नहीं ओके किया भाई, किसी को अगर नहीं आता तो प्लीज बता दो कि भाई हमें नहीं आता है, सबको आता है। चलो बढ़िया। अब फाइनल सबमिट है, फाइनल सबमिट करने के बाद वो पैसे मांगेगा, जब पैसे दे दोगे उसके बाद कुछ नहीं, फिर वो 28 और 29 मार्च को 2 दिन विंडो ओपन करेगा। पर इतने पगे में क्यों जाना, पहले इस सारी चीजों को अच्छे से देख लो, बार बार देख लो। ईमेल आईडी हो गया, एकदम पासवर्ड में लिख के रख लो, एप्लीकेशन फॉर्म आपके मेल पे आएगा। जब तुम ओटीपी होगे ना, सबसे पहले आधार ओटीपी, उसको भरने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ईमेल ओटीपी आता है, फिर फोन पे ओटीपी नहीं आएगा, ईमेल पे आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू गिव दैट। एंड आई थिंक ये आधार का भी जब नंबर दोगे तो फोन आधार रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर तुम्हारा फोन आधार से लिंक नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। सो जिनका ओटीपी फॉर्म आधार से फोन लिंक्ड नहीं है अभी करवा लो, वो 1 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा, डोंट वेट फॉर दैट, क्योंकि लास्ट में फिर आप पैनिक करोगे, अरे मेरा तो आधार लिंक्ड ही नहीं है। तो इसीलिए ओटीपी तभी आता है व्हेन इट इज आधार लिंक। तो जिनका आधार फोन बना हुआ है और फोन लिंक नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड आधार पे जाइए यूडीआई की साइट पे, और फिर तुम डाउनलोड जब करने जाओगे अपना आधार कार्ड तो फोन नंबर मांगेगा, अगर तुम्हारा फोन नंबर है ओटीपी आ रहा है फाइन, नहीं तो नहीं। ठीक है, सिग्नेचर हो गया, अब फाइनल सबमिट है। फीस का जो है हम लोग बता देते हैं, तो आई जस्ट गो थ्रू दिस। तो सबसे पहले साइट विजिट करना है, आधार कार्ड डालना है, ओटीपी आएगा, देन यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी चीजें आपको एक एक करके चलते रहना है। नाउ आई विल शो यू हाउ इट गोस। दिस इज स्टेप 1 वेयर यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब आपका ये हो जाएगा फिर आपको मेल पे एप्लीकेशन नंबर आएगा। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग।
एंड इट ऑल गोज एक के बाद एक है. सो उसके बाद आधार नंबर है, देन लॉगिन होगा, देन यू गो एंड मेक ए डिक्लेरेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ऐसा टैब आएगा. Now the registration form will be displayed. In the first section, candidates have to provide personal detail. ऐसा फॉर्म आएगा. Candidates name, father's name ये भरना शुरू करेगा क्योंकि बाकी डिटेल तो आधार से ले रहा है. Then it will come here. The personal detail display हो जाएगा. Present और वो एड्रेस जो मैंने बोला, परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो वही आगे बढ़ो. Now create a password of 18 8 to 13. जनरल होता है बड़ा कैरेक्टर, बाकी सिंपल @नंबर्स और ठीक है ना. 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है. तो पासवर्ड कंफर्म. सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रखना, जनरली वेर यू बोर्न ऐसे कुछ आता है तो आप कर लोगे. एंड देन जो सिक्योरिटी पिन लिखा है वो यहाँ होगा, वो टाइप करके आगे बढ़ जाओगे एंड देन सबमिट करोगे. और रिव्यू, हर बार रिव्यू बोलेगा, एक बार देख लो कोई स्पेलिंग कुछ भी गलती हुई ना वो ध्यान से, डोंट बी इन ए हरी, डोंट बी इन ए हरी, ठीक है ना. एंड देन वो चेक करवाएगा, देन इट विल गो एंड देन दिस विल कम, सबमिट एंड सेंड ओटीपी अगेन. अब देखो पर्टिकुलर लिस्ट ये सबसे पहले आएगा, माय नेम ये सब वेरीफाई करोगे तब वो सबमिट करके आए और वो मेल पे आएगा, ठीक है ना. तो वो मेल पे ओटीपी आएगा इससे. ये पहला स्टेप है. आधार के बाद ये तुमसे सब भरवाएगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है ना. और उसके बाद इफ कैंडिडेट विश टू चेंज एनीथिंग दे हैव टू क्लिक एडिट और इसके बाद ओटीपी टू मोबाइल आ जाता है एंड देन यू कैन, सो देन इट शोज, ठीक है ना. दैट इज हाउ कंटिन्यू. और ये सारे जो मैं डिटेल्स दिखा रहा था एक एक करके आपके पास आते रहेंगे. सो दैट इज हाउ इट गोज. अब अगर आपको कभी कोई दिक्कत आए, इट्स वेरी इजी टू फिल दैट. जो मैंने कॉम्बिनेशन है मेन आपको बता दिया, ठीक है ना. ये रिव्यू फॉर्म हर जगह आता रहेगा एंड यू कीप फिलिंग एजुकेशनल डिटेल, सो एवरीथिंग गोज वन बाय वन. बट एडिटिंग टाइम में यू कैन एडिट एनी, ठीक है ना. एक बार इसको छोटा करना, दूसरी वाली हमारे पास कहाँ था फॉर्म, ये है ना. सो सी दिस इज व्हाट योर डैशबोर्ड इज. इसको ध्यान रखना, इसमें कोई भी डिटेल एडिट करना है. अब देखो मान लो ये तो एक बार ऑर्डर में भर दिया, मेरे को यहाँ डिटेल एडिट करना है तो यहाँ आएगा. लेकिन एक चीज याद रखना, व्हेन यू एडिट यू हैव टू सेव एंड नेक्स्ट. अगर आई एग्री एंड सेव नहीं किया, सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो इट विल नॉट बी सेव. तो आपको बार बार देखना है एंड देन यू गो, ठीक है. सो दिस वर ऑल द बेसिक्स व्हिच आई वांटेड यू टू टेल. नाउ आपकी कोई क्वेरीज है, अब मेरे को पूछ लो, मैं आपको क्वेरीज कर देता हूं. कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए, विल सेंड ऑल दिस. अभी कोई क्वेरी है, एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी यू कैन आस्क. कोई क्वेरी बेटा, यू अब चैट टाइप कर दो, चैट्स दिखा देना अगर कोई बच्चों को. Now, is it mandatory to pursue a bachelor's course while doing a CA? It is not mandatory, but generally आप क्या है, CA एक प्रोफेशनल कोर्स है. कल को आपको कोई डिग्री या वो चाहिएगी तो यू मस्ट हैव ए डिग्री कोर्स. सो यू कैन अप्लाई फॉर एनी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, क्योंकि CA के साथ रेगुलर कोर्स नहीं कर पाओगे, वो बीच में गैप देना है. सो यू हैव टू अप्लाई फॉर ए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स. एंड उससे फायदा ये होता है कि जो CA में कोर्स है वो बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड है. सो आइडियली यू टेक ए बीकॉम ऑनर्स, दिल्ली का कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, उससे आप कर सकते हो. और आपके लिए तो अब NEP आ जाएगा. आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि बीकॉम ऑनर्स 2 साल पढ़ो, CA का फाउंडेशन क्लियर करो और DU से ब्रेक ले लो. तो जो तुम्हारा स्कोर होगा वो एज इट इज स्टोर रहेगा DU में. फिर आप CA की इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप करके आप वापस आके अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो. सो देयर इज अ टाइम गैप. आप बीच में ब्रेक लो, फिर ग्रेजुएशन छोड़ दो और फिर आगे अपने कोर्सेज करो. ये आपके बैच से लागू है. सो यू पीपल कैन डू दैट when you apply to DU or any university after doing 1 year 2 year, हर लेवल वाइज 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाता है, ठीक है ना. तो इस तरीके से आप लोग आगे चल सकते हैं. सो यू विल हैव दैट फैसिलिटी. You can break even your graduation course and take a break, go ahead. तो ये भी फैसिलिटी है. Any more questions children? किसी का कोई क्वेश्चन है बताओ.
Now, if you want to get into a business, now it depends what type of business. See, if you have your own business, today MBA is one of the preferred things. अगर आप MBA करते हैं तो आप ज्यादा CA is more related to finances. CA जो है वो फाइनेंस फील्ड को ज्यादा आपको बताता है. MBA फाइनेंस होता है तो उसमें जनरल कोर्स भी पढ़ाते हैं and then they take you. So if you do a MBA from IIM, अगर जॉब लेना है तो it's a better value. But even if you have to do business, anything, it has a value. But equivalently CA में क्या है कि struggle ज्यादा है. So it's nothing you will not be able to do. पर वहां पे struggle ज्यादा है. But both courses are good. अब CA में भी वो कई सारे changes कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया, ठीक है ना. बट ओनली थिंग इज दैट सीए में इंटर्नशिप साथ साथ होती है, इंटर के 2 ग्रुप होते हैं, फाइनल के 2 ग्रुप होते हैं, तो क्लियर करते जाना है. एमबीए में क्या फायदा, अगर आपने एक बार क्या क्लियर कर दिया तो 2 साल में आप एमबीए भर के निकल जाओगे. सीए में जरूरी नहीं है कि आपने एक ग्रुप लिया फिर दूसरा नहीं हुआ आप बन के आओगे, तो इट टेक्स लिटिल टाइम. बट इफ यू आर परसिस्टेंट इनफ यू शुड गो फॉर अ सीए. अगर आपके यहाँ है आप आराम से कर सकते हो. अकाउंटेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी. अच्छी होने का मतलब 90 मार्क्स से नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. दैट इज, ये 12th में जो पढ़ रहे हो ना कुछ नहीं है. इकोनॉमिक्स बेकार पढ़ा है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो कूड़े में फेंक देना. जब ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ये सब इकोनॉमिक्स तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी. तुम्हें इकोनॉमिक्स के नाम पे तो कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे. यू हैव बीन ऑन वेरी बेसिक. अब इकोनॉमिक्स में अगर आप ऑनर्स करते हो तो मैथ्स आ जाए एंड देन यू गो टू A11. तो अभी तो हमने इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी के आधे चैप्टर्स बेकार है क्योंकि आप होल्डिंग अकाउंट्स पढ़ोगे, अब आप हायर परचेज पढ़ोगे. तो ये सब चीजें जो है, पार्टनरशिप पढ़ाते ही. पार्टनरशिप मेरे ख्याल से बीकॉम ऑनर्स में भी हट गया. कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, जो कि डिवेंचर, अमलगमेशन, मर्जर होगा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी पढ़ाएंगे. फिर आपको ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ाएंगे. 12th में ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं है. हायर परचेज पढ़ाएंगे, 12th में हायर परचेज में नहीं पढ़ा. सो यू विल एंटर इनटू ए न्यू वर्ल्ड, राइट. सो देयर विल बी गुड thing of courses which would be there. See, if you want to select any course and जैसे किसी ने पूछा कि हम बायोकेमिस्ट्री चूज कर सकते हैं if it is showing bio oblique math. अगर वो बायो oblique maths है तो फिर बायो होना जरूरी है. So you have to read it. अगर वो सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, अब जैसे बीकॉम ऑनर्स कोई कर रहा है और उसके पास अकाउंटेंसी है, मैथ्स नहीं है, तो वो चूज कर सकता है क्योंकि अकाउंटेंसी है. लेकिन वो इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता. क्यों? वहां पे मैथ्स जरूरी है. So you cannot choose if a subject which is mentioned you do not have. Anything else? पूछो बेटा, अगर कुछ भी चीज है मन में एंड ऑल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. सो एवरीथिंग इज क्लियर. कैन आई वाइंड अप दिस? अगर बताओ कोई भी छोटी मोटी क्वेरी अगर है किसी की. क्या है? लॉ डिस्टेंस लर्निंग मोड में नहीं होता है जनरली. यू नॉट डू लॉ. लॉ के लिए डू रेगुलर कॉलेज. यू कैन नॉट डू. सो लॉ के लिए 5 year कोर्स है आपके उसमें. सो यू विल नॉट गेट ए डिस्टेंस कोर्स इन लॉ. PCM कैंडिडेट्स के लिए क्या है? डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू. BSc ऑनर्स इज वन ऑफ द कोर्सेज व्हिच यू डू, ठीक है ना. देन यू कैन डू ऑनर्स इन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री. It depends on area of your interest where you want to go. Do you want to teach or you want to be a professor? ठीक है, you want to go to research. तो ये डिपेंड करता है. तो जिनका रिसर्च फील्ड है वो फिजिक्स पढ़ के फिर आगे रिसर्च पे जाते हैं. अब पीएचडी के लिए आपको मास्टर्स ही बहुत है. यू डोंट हैव टू डू एमफिल. एमफिल की कंडीशन हटा दी गई है एनईपी के बाद. सो वंस यू डू ए मास्टर्स फिर आपका यू आर एलिजिबल फॉर PhD. So it depends what course. If you want to be a lecturer, then obviously you do honors and then MSc in a subject, so that then you can go for a higher this courses. और कई जगह नेट कंपल्सरी है, नेट एग्जाम होता है, पर अब वो भी नहीं है तो आप मास्टर्स करके PhD करते हैं. So depends what is your aim. ठीक है ना. स्कूल लेवल पे पढ़ाना है, आपने MSc कर लिया, B.Ed कर लिया, that is enough to teach. ठीक है ना. And so on. So that is how you have to see as a science student. कुछ लोगों को कंप्यूटर्स में जाना है तो BSc कंप्यूटर्स करके then they can go to coding and other things. So again it depends what all is your interest.
जैसे बायोलॉजी जिनके पास है, माइक्रोबायोलॉजी इज ए गुड कोर्स, ठीक है ना, बेसिकली इफ यू वांट टू गो फॉर लैब एंड ऑल। बायोटेक्नोलॉजी भी अगर आप देखोगे कई यूनिवर्सिटीज अच्छा देती है, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं, इवन बायो होगा तो भी चलता है। So biotechnology is a good course. So you have to see if you get biotechnology, आपके पास बायो है, आप बायो माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं, so on. Anyone else has any doubt? हो गया सबका? So I hope we can wind up. किसी को कोई query? What combination should be taken if you want to prepare for civil services? Civil services करना है आप humanities लीजिए. That is the best option. तो जो लोग humanities लेते हैं, क्या सब्जेक्ट लेने हैं वो बता देता हूँ. ज्योग्राफी जरूर लो और पॉलिटिकल साइंस जरूर लो, ठीक है ना. ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ज्योग्राफी लेते ही तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का पेपर काफी कवर हो जाता है. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सिविल सर्विसेज देन डू ह्यूमैनिटीज. आप इंग्लिश ले लीजिए, पॉल साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, और उसके साथ आप अगर हिस्ट्री मैनेज कर सकते हैं फिर तो आपका सब कुछ ही कवर हो जाता है. सो दैट इज हाउ यू चूज द सब्जेक्ट्स. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, गो फॉर आर्ट्स सेक्शन, सो दैट वुड बी द बेस्ट. साइंस वाइंस लेके बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता. You have to take humanities subject by and large, that is very helpful for IAS. किसी और का कुछ? All done? Anyone, anything? Anybody has any doubt? No. चलो then, we'll wind it up then. किसी का अगर कोई डाउट नहीं है तो I'm winding up. चलो, in case you have any other query, you can always let us know and we'll help you out in this. ठीक है? Thank you.